یوم شہدا اور شیخ محمد عبداللہ کی چھٹی سرکاری گیزٹ سے منسوخ کرنے کے بعد اب سرکار نے ہری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی منانے سے متعلق کمیٹی دی تشکیل 4 ممبران پر مشتمل کمیٹی کے رپورٹ کے بعد ہی لیا جائے گا حتمی فیصلہ۔ میڈیکل کالج سری نگر کی سرمائی چھٹیاں منسوخی کے فیصلے کے بعد اب سکمز نے بھی فیکلٹی کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا آرڈر کیا جاری۔ چھٹی پر گئے ڈاکٹر صاحبان کو فوراً ڈیوٹیوں پر حاضر رہنے کا حکم۔ جی ایم سی سری نگر نے MBBS اور BSc پیرامیڈیکل تھیوری کلاسز کو بھی منسوخ کرنے کا حکم نامہ کیا جاری۔ اور سری نگر میں کوچنگ سینٹروں میں آف لائن کلاسز پر پابندی کے بعد پریس کالونی سری نگر میں طلباء و طالبات نے کیا احتجاجی مظاہرہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی مراکز میں چھوٹ دینے کا کیا مطالبہ، کہا جب بازار کھلے ہیں جم میں رعایت ہے تو تعلیمی مراکز میں کیوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجرے کے ساتھ، اور اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر کووڈ کا گراف کس قدر بڑھ رہا ہے، کووڈ کی صورتحال کیا ہے اور سرکار کی جانب سے کس طرح کے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں، اور اس کووڈ سچویشن میں ایک عام انسان کو کس طرح چلنا ہوگا، کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی ہوگی، اس پر بھی ہم ایکسپرٹس کی رائے آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سرکار کا حکم نامہ، اور سرکار کی وجہ سے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں شیخ محمد عبداللہ کی چھٹی، ان کے برسی کے حوالے سے جو چھٹی منسوخ کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم شہدا یعنی 13 جولائی کی جو چھٹی تھی سال 2019 کے بعد جب سرکاری گیزٹ میں دیکھا گیا تو ان چھٹیوں کو منسوخ کیا گیا تھا۔ لیکن سرکار کا اب نیا حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور اس حکم نامے کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن کے حوالے سے، کیا مہاراجہ ہری سنگھ کا جنم دن منایا جائے گا، اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی منانے کو لے کر اپنا فیصلہ دے گی۔ اس 4 نفری کمیٹی کی سربراہی پرنسپل سیکرٹری GAD منوج کمار دویدی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس سے پہلے 13 جولائی یعنی یوم شہدا کی چھٹی سرکاری گیزٹ سے ہٹائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی شیخ محمد عبداللہ جو کہ نیشنل کانفرنس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، ان کی چھٹی بھی کیلنڈر سے ہٹائی گئی تھی، اور اب جموں کشمیر کے اندر مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹی منانے کو لے کر اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اپنی تجویز دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ دے گی، اور اس چھٹی کو منائے نہ منائے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس چھٹی کو لے کر سیاست تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹی منانے کو لے کر یا اس چھٹی کو سرکاری گیزٹ میں شامل کرنے کو لے کر بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے جموں کشمیر کے اندر اس پر سیاست ہوتے ہوئے دیکھا۔ سنم اعجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ سنم، آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ ایک طرف شیخ محمد عبداللہ کی جو چھٹی تھی اسے منسوخ کیا گیا سال 2019 کے 5 اگست کے فیصلے کے بعد، جب ہم نے جموں کشمیر کا نیا گیزٹ دیکھا سرکاری چھٹیوں کو لے کر جو GAD کی جانب سے مشتہر کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 13 جولائی جو یوم شہدا کے طور پر بھی ہم نے دیکھا کہ برسوں سے یہاں پر منائی جا رہی تھی۔ آج 4 ممبران پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹیوں کو لے کر یا اس کی چھٹی منانے کو لے کر فیصلہ اس کمیٹی کو تفویض کیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر سیاست تیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی چیماگوئیاں ہو رہی تھی، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو جموں کشمیر میں اس پہ عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری تھا۔
देखिए हिलाल, हमें एक चीज माननी पड़ेगी, महाराजा हरी सिंह ने जो जम्मू कश्मीर में राज किया वो उसको शख्सी राज कहा जाता है। वो आज के वक्त की जमहूरियत नहीं है और उस शख्सी राज के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में जो अपराइजिंग जिसका कहा जाता है 1931 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरबराही में वो अपराइजिंग जो थी वो उसी शख्सी राज के खिलाफ महाराजा हरी सिंह के खिलाफ थी। और 1947 में जब आजाद हुआ तो उस शख्सी राज से आजादी भी मिली। तो एक तरह से उस जो टेन्यूर है वो पीरियड है उसको कश्मीर में खास तौर पे जम्मू में भी पहले था कि उसको एक तरह से नेगेटिव एरा को तौर पे देखा जाता था। लेकिन 2014 के आसपास से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ना सही बल्कि जम्मू से कुछ लोगों ने आवाजें उठाना शुरू की। जब यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिन मनाया जाने लगा, जब 14 अगस्त का जो दिन है जिसे कहते हैं कि यौम शौदा का जो दिन है उस 13 जुलाई का माफ के जुलाई का, तो उस दिन को यहाँ पे जो है शख्सी राज के खिलाफ जो है लड़ाई का या आजादी की लड़ाई का जो शख्सी राज के खिलाफ आया उसके दिन के तौर पर मनाया जाए। तो जम्मू में कुछ आवाजें उठने लगी और यहाँ पे वो जम्मू और कश्मीर का जो डिवाइड था वो वहां पे शुरू होने लगा। पहले आवाजें बहुत छोटी छोटी उठने लगी, गली नुक्कड़ से आवाजें, और उसके बाद उन आवाजों में उस वक्त जोश आना शुरू हो गया जब बीजेपी के कुछ लीडरान और उसके साथ साथ जो कंवर महाराज हैं उनके बेटे बिल्कुल सनम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये शामिल रहे जो उनका जम्मू कश्मीर का यूनिट है कि अब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मनानी चाहिए। लेकिन कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस है, उनका किस तरह का रिएक्शन इस पे आ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने उनका रिएक्शन देखा हुआ है। देखिए पास का रिएक्शन भी हमें मालूम है। उन्होंने कहा था कि हमें शख्सी राज से छुटकारा मिला, हमें मुसीबतों से नजात मिली और ये नजात जो है ये हमें 1947 को 15 अगस्त 1947 को मिली है और वो शख्सी राज जो था वो एक गुलामी का तोप था, तो उससे हमें नजात मिली। तो इसलिए कश्मीर के और जम्मू के भी जो बड़े सेक्युलर माइंड जिन्हें लोग कहते हैं वो पहले भी इसके हक में नहीं थे। लेकिन इस वक्त सरकार जो है सरकार ने अब 4 रुकनी कमेटी बनाई है और उसमें इख्तियार दिया गया है इस कमेटी को कि वो और मेंबर्स को भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो नॉमिनेट कर सकती है। तो अब देखना यह है कि ये कमेटी जो है ये रिपोर्ट क्या करती है, क्या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेगी, उनसे सलाह मशवरा करेगी, उसके बाद इसमें कोई फैसला लेगी या ये कोई ऐसा ही फैसला लेगी यानी 4 रुकनी कमेटी जिसमें सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज बैठे हैं वो लेगी, वो बैठेंगे तो वो फैसला लेंगे। अभी देखना हमें इंतजार उसका करना है। अगर उनका ये इसमें आ गया यानी छुट्टी अगर वो दे ही देते हैं महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की, तो फिर सवाल उठेंगे पॉलिटिकल पार्टीज जो है सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू की और कश्मीर की, जिन्हें हम कहा जाता है कि कश्मीर की लगभग सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चाहे किस भी थॉट से हों एक्सेप्ट बीजेपी, यहाँ पे इस पे सवाल है, इस पे उठेंगे और मौका मिलेगा तनकीद का। बड़ी तनकीद हो सकती है गवर्नमेंट, चलिए बड़ी तनकीद हो सकती है। सनम एजाज का ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस हवाले से अपना नुक्ते नजर रखने के लिए, क्योंकि अब चूंकि ये कमेटी बन चुकी है, इसकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, इनके फैसले जात क्या होंगे, वो आने वाले वक्त में ही देखा जा सकता है। लेकिन तब तक सियासत किस करवट बैठती है, किस तरह के सियासी रद्दअमल आते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। चलना अगली खबर में हम बात करते हैं सिक्किम्स की, क्योंकि इससे पहले जो विंटर वेकेशंस थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने अनाउंस की थी और उसके बाद उन्होंने उस ऑर्डर को मनसूख किया कल की डेट में और सभी डॉक्टर साहिबान को हिदायत दी गई थी कि वो आज हाजिर हो जाएं। लेकिन वहीं पर अब सिक्किम्स की जानिब से भी एक ऑर्डर जारी किया जा चुका है और इस ऑर्डर में यही कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर साहिबान सरमाई छुट्टियों पर गए हुए हैं वो जो है वो इन छुट्टियों को मनसूख करे और वापस आ जाए ड्यूटियों पर। ये सिक्किम्स की जानिब से यह ऑर्डर जारी हुआ है और इस तरह से पहले मेडिकल कॉलेज और उसके बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की जानिब से भी इस तरह की छुट्टियों को मनसूख करने का ऑर्डर जारी हो चुका है। यानी ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर में बाकायदा तौर पर उन डॉक्टर साहिबान से कहा गया है कि वो फौरन से पेशतर अपनी ड्यूटियों पर हाजिर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के बढ़ते खदशात के बीच ही इस ऑर्डर को जारी किया जा चुका है। एक बड़ी खबर जो सिक्किम्स की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें डॉक्टर साहिबान की छुट्टियों को मनसूख किया गया है और यह सब कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड के बढ़ते मामलात है या बढ़ते खदशात है उसके पस मंजर में लिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि अगली खबर में अगला ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे, ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का है और इस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के इस ऑर्डर में कहा गया है कि जितने भी MBBS जो कोर्सेज हैं और उसमें जो थ्योरी है,
تھیری کلاسز ہیں، نہ صرف MBBS بلکہ جتنے بھی BSc پیرامیڈیکل کورسز ہے اس میں تھیری کلاسز کو بھی فی الحال سسپینڈ کیا جا چکا ہے. یہ سری نگر میڈیکل کالج کی جانب سے آرڈر جاری ہوا ہے اور یہ آرڈرز آج پے در پہ نکل رہے ہیں اس وجہ سے کہ جموں کشمیر کے اندر کووڈ کے معاملات کافی بڑھ رہے ہیں. چلے ناظرین، بات کووڈ کی کر رہے ہیں کیونکہ کووڈ جہاں ملکی سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,68,000 کیسز پورے ملک کے اندر پازیٹو آئے ہیں اور جموں کشمیر کے اندر اگرچہ یہ لہر ابھی کم ہی ہے لیکن روز بروز اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور 706 کیسز کل کے ڈیٹ میں جموں کشمیر کے اندر پازیٹو پائے گئے ہیں اور اگر 1-1.5 ہفتہ پہلے ہی دیکھیں گے تو یہ کیسز تقریباً 2 ڈیجٹ میں ہی آتے تھے لیکن اب اس میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے اور ان اضافیوں کے دوران ہم ان گائیڈ لائنز پر بھی بات کریں گے جو ICMR کی جانب سے جاری کی گئی ہیں حالیہ دنوں اور جس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی شخص پازیٹو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے اس پر کہیں نہ کہیں انہیں ضرورت نہیں سمجھی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ جس شخص میں علامات پائے جائے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص میں انڈر لائن کوئی بیماری ہو تو انہی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جانا ضروری ہے اور اگر کوئی پازیٹو ہوگا بھی تو انہیں اگر کوئی سمٹم نہیں ہے تو پھر انہیں ٹیسٹنگ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑے ادارے ICMR کی جانب سے اس طرح کی نئی گائیڈ لائنز کو جاری کیا جا چکا ہے لیکن جموں کشمیر کے وزاویز جب ہم دیکھتے ہیں ہم بھی اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر نثار الحسن جو ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہے میڈیکل کالج سری نگر کے اندر، ان سے بھی ہم یہ تجویز جاننے کی کوشش کریں گے کہ ICMR کی جانب سے جو ایک نئی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملتی تھی تو کیا وجوہات ہوں گی کہ ان گائیڈ لائنز کو جاری کیا جا چکا ہے؟ ڈاکٹر نثار الحسن اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر آج ان گائیڈ لائنز کے اندر تبدیلی لائی گئی ہیں اور جو کانٹیکٹ ٹریسنگ تھی اس سے کہیں نہ کہیں مدد ملتی تھی کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے میں، تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو 90 جو پینڈیمک ہے یا جو تھرڈ ویو کی جو آمد آ گئی جو ملک بھر میں ہے اب یہاں پہ بھی دیکھی جا رہی ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. ویکسینیشن کے علاوہ ٹیسٹنگ جو تھی، ٹیسٹنگ از دا کارنر اسٹون. یو ہیو ٹو ٹیسٹ پیپل، یو ہیو ٹو ٹریس پیپل، یو ہیو ٹو ڈو کانٹیکٹ ٹریسنگ. یہ سب سے بڑا جو ہے کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے ٹریسنگ کرنی ہے، اس کے بعد کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہے، ان کو کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ان کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے. سپوز اگر آپ کو میں ایک سمپلیفائی کر کے اگر آپ کو کوئی پازیٹو کیس آتا ہے تو پھر اس کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہوتے تھے ان کو ہم ٹریس کر کے ان کا ٹیسٹنگ کرتے تھے، اس کے بعد ٹیسٹنگ کر کے اگر ان میں سمٹمز نہ بھی پائے جاتے تھے ان کو آئسولیٹ کرتے تھے. لیکن دس ICMR گائیڈ لائنز از سرپرائزنگ ٹو مینی ایکسپرٹس انکلوڈنگ می کہ اگر آپ کو اس تھرڈ کووڈ ویو یا اومیکرون جو کے حوالے سے جو اومیکرون سے ٹریگر ہو گئی ہے تو اس کو آپ کو کمبیٹ کرنا ہے یا اس کے خلاف آپ کو لڑائی لڑنی ہے تو کانٹیکٹ ٹریسنگ از ویری مسٹ. اگر سپوز آپ کا پازیٹو کیس آتا ہے ان کو آپ ان کے کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں چاہے آپ ٹریولرز لیتے ہو یا یہاں پہ گھر میں اگر کوئی پازیٹو کیس آتا ہے یا کسی انسٹیٹیوشن میں پازیٹو آتا ہے تو ان کے پھر آپ بھی دیکھتے تھے کہ وہ ٹویٹر پہ آ کے بولتے تھے کہ آپ جتنے بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہوئے تھے ان کو چاہیے کہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں، ٹیسٹ کریں. اسی سے اگر آپ ٹیسٹ کرو گے اسی سے ہم کو پتا چلے گا کیا یہ پازیٹو ہے یا نہیں. اگر ہم ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کیسے کریں گے؟ تو کانٹیکٹ ٹریسنگ از اے مسٹ، چاہے ان میں سمٹمز ہو یا نہ ہو. لیکن اگر
एक पेशेंट या एक पर्सन एसिम्टोमेटिक भी होता है, वो भी ये कोविड-19 या वेरिएंट फैला सकता है। एविडेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, डाटा के हिसाब से हम देखेंगे कि पहले लगता था कि एसिम्टोमेटिक विल नॉट स्प्रेड, लेकिन अब क्लियर एविडेंस है कि अगर एसिम्टोमेटिक लोग भी हैं वो भी कम्युनिटी में इस कोविड को फैला सकते हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट विज़-अ-वी कंबैटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बगैर हम इस कोविड-19 को कंट्रोल नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईसीएमआर को दूसरी हम जो मैंने क्लास उसमें देखा कि प्रेग्नेंट लेडीज को आप मत करो टेस्टिंग। अगर हमको ये भी देखना है अभी ओमिक्रॉन के हवाले से कहीं ना कहीं कि क्या ये ओमिक्रॉन सीवियर हो सकता है प्रेग्नेंट लेडीज में। अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज में टेस्ट ही नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है नहीं। हमको ये भी कैसे पता चलेगा कि ये वायरस, ये वेरिएंट कैसे बिहेव करता है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन में, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज में है या बच्चों में है। देखो ओमिक्रॉन के हवाले से ये मानना है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी नीड टू आइसोलेट देम। आइसोलेट नहीं करोगे तो ये कम्युनिटी में फैल जाएगा, आइसोलेट नहीं करोगे तो ग्राफ बढ़ सकता है, तो ये वल्नरेबल लोगों को दे सकता है वही एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, और उनमें भी ये जानलेवा हो सकता है। वल्नरेबल मींस ये जो पर्सन है अगर खुद एसिम्प्टोमेटिक होगा, अगर ये एल्डरली में दे देगा ये पेशेंट, अगर ये उन लोगों को देगा जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, उनमें ये जानलेवा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको रिवाइज करनी है अगर उनको सही मानों में इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और वो भी सक्सेसफुल लड़ाई। डॉक्टर साहब, चूंकि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से अब ये स्प्रेड हुआ है और काफी स्पाइक आए हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि 1,68,000 के करीब कल के दिन में भी केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मुल्क की सतह पर जब हम देखते हैं तो एक पीक लेवल जो है, पीक टाइम जो है अभी इस कोविड का नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की वजह जब हम देखते हैं, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 700 के आसपास केसेस आ रहे हैं, और इससे पहले जब सेकेंड वेव से हम गुजरे हैं तो तब हमने देखा कि रोजाना 3,500 तक भी ये तादाद जो है चली गई है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है, कब ये पीक टाइम कश्मीर के अंदर आ सकता है और किस हद तक ये लेवल बढ़ सकती है? देखो ये दो चीजें मैं कह सकता हूं इसमें। जो ये आपका केस काउंट है, इट कैन बी एन अंडर एस्टिमेट, और इससे ज्यादा भी हमारे इस कश्मीर के हवाले से केसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इस अस्पतालों में देखा कि उनका सीटी पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं कोविड सिम्टम्स लेके, उनको हम आरटी-पीसीआर करते हैं, उनको नेगेटिव आता है, लेकिन सीटी जब उनको करते हैं वो कोविड कंसिस्टेंट होता है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फॉल्स नेगेटिव भी ओमिक्रॉन के हवाले से आरटी-पीसीआर आता है। ये जो केसेस है मुझे लगता है इससे ज्यादा केसेस है कश्मीर के में। अब आपने बोला कि पीक के हवाले से, देखो कश्मीर के हवाले से हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि दैट वी आर 1 or 2 weeks behind it comes। जो कोविड सर्ज आ गया वो दिल्ली के बाद आ गया, तो दैट इज वाई अगर दिल्ली में पीक जो प्रेडिक्शन है पीक की वो लगभग जनवरी के एंड में है, अकॉर्डिंग टू ए मॉडल बाय आईआईटी कानपुर, कि पीक जो होगा वो जनवरी में होगा। लेकिन कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे, यहां पे तो पीक का जो प्रेडिक्शन है इट विल बी 1 and 2 weeks बिहाइंड दिल्ली और महाराष्ट्र। दैट मीन्स यहां पे जो है अभी केसेस बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा बढ़ेंगे, और इट मे बी अगेन लाइक सेकेंड वेव विज़-अ-वी केसेस। दैट मीन्स कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस होंगे अगर हम टेस्टिंग को रैंप अप करेंगे, लेकिन पीक जो होगा कश्मीर के हवाले से वो दिल्ली के बाद आएगा। डिफरेंट प्लेसेस विल हैव डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर पीक, और कश्मीर में इट इज एक्सपेक्टेड कि पीक विल बी इन फरवरी, और दैट मीन्स तब तक केसेस की तादाद बढ़ जाएगी। और जब केसेस की तादाद बढ़ जाएगी, मैंने अस्पतालों में भी देखा हॉस्पिटलाइजेशंस आल्सो हैव इंक्रीज्ड, दो मार्जिनली बट दे हैव आल्सो इंक्रीज। मैं आज कोविड हॉस्पिटल कुन्नू में राउंड करके आया, वहां पे लगभग 55 पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड है। सम आर इन आईसीयू, सम आर रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, और ट्रैवलर्स के हिसाब से 14 पीपल आर एडमिटेड देयर। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कोविड सर्च है कम्युनिटी में, हॉस्पिटलाइजेशंस भी कश्मीर में इंक्रीज हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसारुल हसन हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर निसारुल हसन, डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट,
हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरह का सिनेरियो अभी है और पीक टाइम कब जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली के अंदर कब होगा। और उनका मानना है कि फरवरी के महीने में एक्सपेक्टेड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पीक टाइम हो सकता है कोविड-19 केसेस के बढ़ते रुझान के पेश नजर, क्योंकि उनका यह भी मानना है कि बाकी स्टेट्स खासतौर पर दिल्ली के मुकाबले में हम 2 हफ्ता बिहाइंड है, 2 हफ्ता पीछे हैं जब ये पीक टाइम आ जाता है। चलिए, अब अगरचे इस तरह के केसेस आ रहे हैं, उसका समाधान क्या है? एक तो अवाम को भी, लोगों को भी इस हवाले से अपने आप SOPs पर अमल करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद अब अगर खुदा ना खास्ता लोग इस पे मुब्तला हो भी जाते हैं, उन्हें कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं, तो उस सूरत में हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन 2 ही चीजें हैं। लेकिन जिन अशखास में, जिन अफराद में सिम्टम्स पाए जाते हैं और सीवियर सिम्टम्स पाए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है? डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद के साथ आज हमारे लोगों की बात हुई है और उन्होंने कहा कि श्रीनगर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि हमने फिलवक्त जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उनका ऑडिट किया है। न सिर्फ ऑडिट बल्कि उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और खासतौर पर यह नॉन एसेंशियल व्हीकल्स के लिए है और शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा शहर श्रीनगर के अंदर। और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए RT-PCR मैंडेटरी किया गया है और जब तक ना उनका रिजल्ट आएगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, तब तक वो आइसोलेशन में ही जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक 14 लोग ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 6 को इमीडिएटली टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि बाकी 8 जो है उन्हें दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। और उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर उन्होंने 20% RT-PCR टेस्टिंग में इंक्रीजिंग की है इस कोविड को मद्देनजर रखते हुए। और उन्होंने कहा कि सेकंड लहर में, यानी सेकंड वेव में सबसे ज्यादा 1300 केसेस श्रीनगर के अंदर आए थे एक दिन में और आज हमने इसके 4 गुना एडवांस इंतजाम किए हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बता दूं कोविड सिचुएशन कैसी है। अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से केसेस में काफी ज्यादा स्पाइक है। पहले जहां हमारे केसेस 30-40s में आ रहे थे, अब वही हमारा अगर देखें हम केसेस 130 में और कल तो 150 क्रॉस हो गया। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसके साथ अगला सवाल आपका कुदरती तौर पर यह होगा कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारियां क्या है। तो मैं ये बताता चलूं कि तैयारियों के सिलसिले में जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में काफी सबने मिलकर, पूरी टीम ने और अवाम के ताउन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया और ऑक्सीजन बेड्स सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल कराए गए। अभी जो इकदाम उठाए गए हैं उनमें एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑडिट किया गया है, जिसमें तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पूरा ऑडिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ जो गैदरिंग्स है उन पर लिमिट 25 की ही रखी गई है। तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को बताया गया है कि ऑफलाइन मोड में काम करें। उसके साथ नाइट कर्फ्यू, जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की, उसको रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको बंद कर दिया गया है। जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ, उनके लिए SOPs इन प्लेस हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर मैंडेटरी RT-PCR टेस्टिंग होती है और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आता उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। आज तक टोटल तालीम जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का मानना है। लेकिन तालीम को लेकर ही आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर तलबा व तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2016 से ही अलग अलग मसाइल से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। मुहज्जिब समाज और ममालिक तालीम को तरजीह देते हैं, ये बच्चों का मानना है। और बच्चों का यह भी कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स या तालीमी इदारे बंद हो जाए। बच्चों का यह भी कहना है कि तालीमी मराकज के सिवा बाकी सभी इदारों को छूट दी गई है, जबकि सिर्फ तालीमी इदारों खासकर तालीमी सेंटरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है ऑफलाइन क्लासेस पर। इसके अलावा उनका यह भी कहना है और उनका यह मानना है कि एग्जाम के मौके पर पेरेंट्स की कंसेंट को लेकर ऑफलाइन इम्तिहान देने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। यानी उनका कहना है कि जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं
اور پڑھائی انہیں آن لائن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر ایگزام آف لائن کیوں لیے جاتے ہیں؟ یہ بچوں کا سوال ہے۔ اگر ہمارا ایجوکیشن اگر یہاں پہ کچھ بھی بند نہیں ہوا، کچھ سفر نہیں ہو رہا ہے، جم سفر نہیں ہو رہا ہے، الکوہل شاپ سفر نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا ایجوکیشن کیوں سفر ہو رہا ہے؟ ہمارا اگر انہوں نے بولا کہ 20 to 15 days لگیں گے ہمیں، تو اتنا ہی ٹائم پچھلے سال بھی انہوں نے سیم وہی بولا، پورا سال ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ 20 days 15 days 20 days 15 days۔ ہم نہیں یہ سب کچھ چاہتے، اور اگر بند کرنا ہے تو سب کچھ بند کرو۔ کشمیر میں ایک بھی انسان نہیں دکھائی دینا چاہیے چلتا ہوا۔ پھر نے پرومس کیا ہمیں کہ آپ لوگ ویکسین کرو، ٹیچر سٹاف جو ہے وہ فلی ویکسینیٹ ہونے چاہیے، تو ہم نے وہ مان لیا، ہم نے خود بھی ویکسین کیا، ٹیچرز نے بھی ویکسین کیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ کیا بول رہے کہ نہیں آپ لوگ ٹیوشنز بند کرو، سارے ٹیوشنز بند کرو وغیرہ۔ کیوں کریں گے؟ ہمارا فیوچر کیوں یہ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ 2022 ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ والا سال بھی یہ لوگ ڈسٹرب کرے ہمارا۔ پہلی بات ہے اگر جو ایک سویلائز۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا اسپیشل رپورٹ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔